Yes, this was what I was telling you. If less than and more than ogives are drawn on the same field, then this is more than ogive coming downward, and here it is not to be joined with the x-axis. Wherever the last value is, leave it there only, loose end. And same way, this is upward moving curve, this is less than, and they will intersect at any point. कहीं भी वो कट कर सकते हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है. So this was all about this frequency diagram. So let me take out today's work. Yes. So name of the chapter is Presentation of Data, Textual and Tabular. Now you remember in the very first chapter we have done in this singular sense definition of statistics. So again I am revising the same thing. Statistics in singular sense means that science which deals with the collection of data, classification of data, presentation of data, analysis and interpretation of data. So right now these days we are dealing with the third stage, that is presentation of data. ठीक है, तो presentation of data can be done with the help of three methods. Either we can present the given data, माने numerical information, numerical facts. Either they can be shown with the help of simply diagrams on the simple sheet, plain paper. Secondly, diagrams can be presented on the graph paper, that is called frequency diagrams, या graphical presentation. And thirdly, this data can be presented with the help of the tables also. ठीक है, अब now tables का क्या meaning है, this we have to do in this chapter. तो first है, before coming to tabular, firstly we should know the meaning of this term textual presentation. तो textual presentation का meaning होता है कि when we are given some information, some paragraphs are given, some text is given, जैसे chapter का text होता है, written material होता है, some text part is given paragraphs में, in between here and there some numerical fact is also given. In between the sentences, in between the lines, some numerical information is also given. So then what happens, like just for example I speak few lines, you will come to know. पहले मैं कुछ लाइंस बोलती हूँ, बीच में आई विल मेक यूज ऑफ डाटा. जैसे मैं कहूँ कि वी आर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्वामी संदास पब्लिक स्कूल फगवाड़ा. इट इज़ ए वेरी pioneering institution in the given area. Many students from nearby areas are coming to this school. The strength of the school is almost 3,500 students. There are classes up to 12th standard. Last year in 12th standard, 50 students appeared. Out of those 50, 40 students got first division, 20 students got, 10 students got second division. Then in the 10th standard, our board results were very fine. We got 100% result, full stop. ठीक है, अब मैंने 5-7 लाइनें बोली हैं. इन बिटवीन द लाइन्स अब मैंने क्या किया, बीच में सेंटेंस बोल दिए, बीच बीच में आई मेड यूज ऑफ डाटा. ये बोला ना परसेंटेज इतने बच्चे, इतने परसेंट नंबर आए, ये फर्स्ट डिवीजन के इतने बच्चे हैं. तो इफ वी प्रेजेंट डाटा इन दिस मैनर, means when we insert data in between the lines, in between the words of the sentences, then it is called textual. मतलब हम कुछ लिखा हुआ हमारे पास है, बीच बीच में कहीं कहीं कोई न्यूमेरिकल फिगर आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है, सो अब है कि ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, इट इज फाइन, इट इज ओके, बट इट इज ओके ओनली व्हेन द टेक्स्ट मटेरियल इज वेरी स्मॉल. जैसे अभी मैंने हार्डली 5-7 लाइन्स बोली, थोड़ी सी लाइनें हैं, तब तो इट इज़ फाइन कि हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद भी कर सकते हैं. नाउ इमेजिन ए सिचुएशन कि यू आर गिवन 10 पेजेस ऑफ ए चैप्टर and in each page there are 4 paragraphs, and in all those paragraphs a lot of data is given. Now to see what type of difficult situation can it be. It will be very difficult to read all the lines firstly. मतलब सिंपल एक ह्यूमन नेचर है, इट्स वी ऑलवेज फाइंड रीडिंग ऑफ पैराग्राफ्स वेरी डिफिकल्ट. हम ज़्यादा चाहते नहीं हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी वी वांट पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. शॉर्टकट पॉइंट्स में हो तो हमें थोड़ा पढ़ने में ईजी लगता है. पैराग्राफ्स आर वेरी लेंदी and it any human being finds it very difficult and complex. Now in those paragraphs then further lot of numerical information is given, और हमें कहा है कि उसको याद भी करिए, learn that also, then it becomes very difficult process.
कोई भी आदमी हो, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, इट बिकम्स वेरी कुम्बरसम, बड़ा ही मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है दैट इज सूटेबल ओनली व्हेन स्मॉल टेक्स्ट इज गिवन टू अस। थोड़ा बहुत है तो हम आसानी से वी कैन रीड दैट, बट इन केस ऑफ, अब इसका ये माइनस पॉइंट है, इट इज इट्स ड्रॉबैक और लिमिटेशन कि भाई इफ टेक्स्ट इज वेरी लार्ज and lot of information, numerical information has been inserted in that text, then it becomes very difficult and complex for the reader to read all the lines, read all the pages, and further to learn all the numerical values. It becomes very difficult mentally and psychologically, ठीक है। हमें सारा ही पढ़ना पड़ता है और फिर उसको कहीं दोबारा से वैल्यूज़ को अंडरलाइन करना पड़ता है, फिर याद करना पड़ता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक। तो इन ऑर्डर टू कवर अप दिस प्रॉब्लम, जो स्टेटिस्टिशियंस हैं दे हैव डिस्कवर्ड अनदर वे टू मेक द थिंग्स ईजी। अब वो कौन सा वे है, दैट इज कॉल्ड दिस टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। टेबुलर वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड टेबल। अब ये टेबल, आपने खुश नहीं हो जाना, वो डाइनिंग टेबल वाला टेबल और चेयर टेबल, बैठने वाला, काम करने वाला, पढ़ने वाला, स्टडी टेबल, इट्स नॉट दैट, इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेबल। इसका मीनिंग है कि व्हेन वी प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। अब क्वेश्चन आता है, भी टेबल टेबल बार बार आ रहा है, टेबल का क्या मतलब हुआ। अच्छा, तो मैं आई गिव यू वन एग्जांपल, उससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब अपने मन में आप सोचो कि यू आर रियली सिटिंग इन ए क्लासरूम, घर पे नहीं बैठे हो, क्लास में बैठे हो, है ना। तो क्लास में जब आप जाते हो सुबह जाते ही, तो हर एक की अपनी अपनी सीट होती है, जी चलो जी मैंने, आई विल सिट माई दिस फ्रेंड, आई विल सिट माई दैट फ्रेंड, सब बैठते हैं, ठीक। तो अब आपने, यू वुड हैव नोटिस्ड वन थिंग, एज सून एज यू एंटर द क्लासरूम you see that all the tables, benches, they are arranged in some systematic manner. नॉर्मली क्या होते हैं, 3 रोज होती हैं, यही होता है ना एक नॉर्मल साइज के रूम में, जैसे अपने स्कूल में है, 3 रोज ऑफ बेंचेस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती हैं, बट नॉर्मली 3 रोज आर देयर, लंबाई में, ठीक है ना, लेंथ में 3 रोज होती हैं। उसके बाद इन ईच रो ऑन एन एवरेज 6 बेंचेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप इमेजिन दैट अरेंजमेंट कि रोज हो गई हमारी, सॉरी जो कॉलम्स हैं वो 3 हो गए, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, लंबाई, दैट इज कॉल्ड कॉलम। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली 6 बेंचेस अरेंज किए हुए हैं इन ईच कॉलम, उनको हम कह देते हैं रोज, कह देते हैं इतनी 6 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। उस अरेंजमेंट में किसी चीज़ को रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि हम न्यूमेरिकल डाटा की बात वैसे तो कर रहे हैं, बट अदरवाइज किसी भी चीज़ को अरेंजमेंट करके रखना, प्रॉपर ऑर्डर में रखना, दैट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप आते हो, स्कूल बस में आते हो, या वैसे कोई भी प्राइवेट बस भी है, तो आपने देखा होगा कि उसमें बीच में पैसेज होता है, एक साइड पे सीटिंग अरेंजमेंट होता है, दूसरी साइड पे होता है, विंडो वाली साइड पे, ठीक है। एक तरफ 2 पर्सन्स की सीटिंग होती है, एक तरफ प्राइवेट बस में 3 लोगों की सीटिंग होती है ना। तो अब वो क्या है, इसका मतलब देयर आर 2 कॉलम्स ना, 2 रोज बन गई, 2 कॉलम बन गए ना लंबाई में, 2 कॉलम्स आर देयर, एंड इन ईच कॉलम मान लो 8 सीट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब 8 हो गई रोज और 2 हो गए उसके कॉलम, ठीक। तो जस्ट मीनिंग इज कि व्हेन वी अरेंज डाटा इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, रोज में एंड कॉलम्स में, माने कॉलम्स माने वर्टिकल अरेंजमेंट एंड रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो उसको हम कह देते हैं टेबल, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस टेबल, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। The process of arranging data in the form of rows and columns or in the form of tables, that is called tabulation. अब आप सोचो, आप क्लास में जाते हो, सारे बेंच सब उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक बेंच पड़ा हुआ है, कोई पहले तो जाके आपको क्लास टीचर विल आस्क कि बेटे अरेंज दीज बेंचेस, तो बैठना ही पॉसिबल नहीं है, कोई बेंच उल्टा पड़ा हुआ है, कोई सीधा पड़ा है, बैठना ही पॉसिबल नहीं है फॉर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो फिर आप क्या करते हो, आप उनको अरेंज करते हैं in the form of rows, in the form of columns, ठीक है। तो you have devoted your time to make that arrangement, so the time for which you are arranging, that process is called tabulation, ठीक। you may please note down this definition, because in the book this tabular presentation, ये थोड़ा सा confusing सी definition दी हुई है, मैं बोल देती हूँ, आप उसको जरा नोट कर लीजिए। A table means, write down both the definitions in a simple manner. A table means presentation of data
in rows and columns. Table means presentation of data in rows and columns. या थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए सिस्टेमेटिक मैनर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, बीच में इंसर्ट कर लो, सिस्टेमेटिक मैनर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, full stop. Now in next line write down tabulation means, tabulation means the process of, tabulation means the process of arranging data, process of, main word ये है, process of arranging data in a systematic manner, process of arranging data in a systematic manner in the form of rows and columns, systematic manner in the form of rows and columns. ठीक है, बस ये याद कर लेना, सिंपल डेफिनेशन. बुक में ना पढ़ने से वो पता नहीं चलता, टेबल का भी वही दिया हुआ है, टेबुलेशन का भी उसी तरह से दिया हुआ है, तो इट बिकम्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ठीक है जी, चलो. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. अब है कंपोनेंट्स. यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, हेडिंग इज गिवन टेबुलर प्रेजेंटेशन, आगे दिया हुआ है कंपोनेंट्स. ठीक है, तो बिफोर कमिंग टू दिस कंपोनेंट्स आई वुड लाइक टू शो यू द sketch of a blank table. Now you please see, and then I will explain the components with the help of this blank sketch. You all are requested to draw this blank sketch. Please take out your scale and pencil. Quickly draw this. It is given in the book, but if we don't do this practice ourselves, we won't be able to understand how to make the table, how to draw the structure. So please take out scale and pencil. This is the name of the topic. What we are going to do, we are going to draw sketch of a blank table. Sketch मतलब एक स्ट्रक्चर सा बनाना है. अभी इसमें no value has been given, बाद में हम with values करेंगे. Sketch of a blank table. Underline this. ठीक है. Then first of all, at the top, please write down table number. This is the first component of any table. कि जब भी हमने, whenever we want to show this type of presentation, तो first of all we should mention table number. अभी आगे मैंने ये blank छोड़ा है, ये blank का मतलब है when we will start our work, तो हम numbering करना start कर देंगे कि ये हमने first question किया है, second किया है. अभी इसको blank छोड़ेंगे क्योंकि हम blank table का काम कर रहे हैं. Then after that, what is required in any table? Then we should give title. This is the second component. Okay. Now I am explaining components side by side. Title of the table. Title means heading. जैसे हम सबका कोई ना कोई नाम है ना, हिमानी है, केतन है, प्रभजोत रेपल है, मान्या मनचंदा है, सभी बच्चे हैं, सबका मेरा है, सबका कोई ना कोई नाम है. तो ऐसे ही हर एक टेबल का भी कोई ना कोई नाम होता है. तो दैट इज कॉल्ड टाइटल ऑफ टेबल. ठीक. अच्छा, अब टाइटल ऑफ टेबल में और ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिलेटेड टू द गिवन इंफॉर्मेशन. ये नहीं कि इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है लोगों के इनकम और सेविंग के बारे में और आप लिखना शुरू कर दो कि ये भी टेबल है अबाउट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी ए रॉन्ग टाइटल. जो भी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द स्टेटमेंट उससे मिलता जुलता एक ब्रीफ, क्रिस्पी, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग सा, सुटेबल सा टाइटल हमें बनाना चाहिए, शॉर्ट सा टाइटल. देन ऑन द राइट साइड, ये हेडिंग के इधर राइट साइड में ब्रैकेट में हेड नोट. हेड नोट का मीनिंग होता है, नॉर्मली इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज गिवन. ठीक है ना, जैसे मान लो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो मान लो अब वो क्विंटल्स में है, तो फिर ऊपर हेडिंग दे देंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, नीचे थोड़ा सा उसके नीचे करके यहाँ ब्रैकेट में वी विल राइट इन क्विंटल्स. नॉर्मली यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रिटन हियर. आपने क्विंटल नहीं लिखना है, वो तो आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल. कि नॉर्मली हेड नोट तब दिया जाता है जब टाइटल हमारा थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही लॉन्ग हो रहा हो, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट वी शुड मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द टाइटल. नाउ यू प्लीज विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ड्रॉ दिस बॉक्स.
स्क्वायर नहीं होना चाहिए, थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, थोड़ा जल्दी करिए बेटे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करके ऐसे इसके पार्ट्स बना लीजिए, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, सी ऑन द स्क्रीन। I have divided this in two parts. One part is called stub head. Stub का मतलब होता है रोज, ये ऐसे ऐसे ये जो अंदर एरो बनी हुई है ना रोज, इस वे से हॉरिजॉन्टली ये सारी रोज हैं, ठीक है। तो रोज का जो हेड होता है, हेडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड स्टब हेड। स्टब हेड मींस हेडिंग ऑफ द रोज, ठीक। और उसके बाद ये जो एरो लगाए हैं, एरो का मतलब कि ऐसे हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो कुछ भी लिखेंगे आगे क्वेश्चन में, जो भी स्टेटमेंट होगी हमारी, तो उसको रो बोलेंगे, स्टब और रो। बुक में वर्ड यूज किया हुआ है स्टब, स्टब का भी मतलब रो ही है। तो ये सारी इधर यू कैन राइट स्टब और रो, वन एंड द सेम थिंग। देन नाउ हियर वी हैव रिटन कैप्शन। कैप्शन का मीनिंग होता है टाइटल ऑफ द कॉलम्स, जो भी हमने यहाँ दिखाना है, ठीक है, जो भी इस साइड पे दिखाएंगे उसको कॉलम कहना है, और उस कॉलम का जो हेडिंग होता है दैट इज कॉल्ड कैप्शन, वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली लंबाई में। फिर अब कैप्शन के नीचे अगर फर्दर डिवीजन हो तो उसके हम सब कैप्शन भी दे सकते हैं। सब कैप्शन मतलब अगर रिक्वायर्ड हो, डोंट वरी, वी विल डू व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर कि इसके मीनिंग क्या है। अभी आप यू जस्ट राइट डाउन सब कैप्शंस मीन कि इफ कैप्शन नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या थ्री पार्ट्स, जितने भी हों, तो उनको भी थोड़ा सा कोई हेडिंग देना होता है, दैट इज कॉल्ड सब कैप्शन, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है सेल, और एक जगह ये सेल सेल लिखा हुआ है। सेल का मतलब जो भी न्यूमेरिकल डाटा होगा, जो भी वैल्यू होती है, मान लो 10 है, 20 है, 35 है, 40 है, कुछ भी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिखाएंगे, दैट विल बी नोन एज सेल। और ये सेल्स को ही कह देते हैं, आई हैव पुट हियर वन ब्रैकेट, सेल्स को ही कह दिया जाता है बॉडी ऑफ द टेबल। चाहे हम सेल बोल दें, चाहे कई बुक्स में इसकी जगह लिखा होता है बॉडी ऑफ टेबल, एक ही बात है, दोनों का एक ही मीनिंग है। बॉडी ऑफ द टेबल, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो हम इकट्ठा बोल देते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ऐसे ये सारे पार्ट्स हैं, टेबल के पार्ट्स हैं, उनको इकट्ठा नाम दिया जाता है बॉडी ऑफ टेबल। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अब है फुट नोट। फुट नोट के आगे ब्लैंक हैज बीन केप्ट हियर, इसका मतलब ये होता है कि इफ वी वांट टू गिव सम स्पेशल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो ये वैल्यू, कई बार आप देखते हो खास करके आपकी इंग्लिश बुक्स में किसी जगह एस्ट्रिक साइन होता है, एनी वर्ड इज गिवन तो एक एस्ट्रिक साइन दिया होता है, स्टार सा बना होता है या डॉट सी बनी होती है, और बाद में द मीनिंग ऑफ दैट टर्म इज गिवन इन द एंड ऑफ द पेज, एंड में बिलो ऑल द पैराग्राफ सबसे नीचे दिया होता है इसका, या इटैलिक्स में वर्ड लिखा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा सा करके लिखा होता है और नीचे मीनिंग दिया होता है। उसका मतलब क्या है कि दैट वर्ड हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस, दैट वर्ड हैज ए स्पेशल मीनिंग, ठीक है। तो अगर हमारे टेबल में कोई वैल्यू हो, कोई भी हो सकती है इनमें से, ये 6 पार्ट सेल्स में से एनी वैल्यू, अगर कोई ऐसी वैल्यू है कि अबाउट विच वी वांट टू गिव सम स्पेशल इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, मान लीजिए वो है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, एक वैल्यू राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटेड, तो हम यहाँ पे एक एस्ट्रिक साइन लगा सकते हैं। देन हियर इन द फुटनोट देन वी शुड राइट कि भाई ये जो स्टार्ड वैल्यू थी या एस्ट्रिक साइन वाली वैल्यू है, दैट इज एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अगर रिक्वायर्ड हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी में फुटनोट जरूरी हो, ऐसा कुछ नहीं, जिस क्वेश्चन में हमें लगे कि कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन वी वांट टू गिव रिलेटेड टू एनी ऑफ द सेल, देन वी कैन मेंशन हियर इन द फुटनोट, ठीक। एंड लास्ट इज सोर्स। सोर्स के आगे ब्लैंक छोड़ा है, सोर्स का मतलब कि व्हाटएवर स्टेटमेंट हैज बीन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, वो कहाँ से ली गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू एनी क्वेश्चन एंड आई टेक दैट स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइंस बुक, मान लो आप साइंस 10th में हो, साइंस भी पढ़ते हो, तो आपकी साइंस की बुक में से मैंने कोई स्टेटमेंट लेके उसको बोला कि इसका टेबल बनाना है, तो आई शुड मेंशन हियर कि व्हाट इज सोर्स ऑफ माय इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर सो एंड सो, चैप्टर नेम सो एंड सो फ्रॉम साइंस बुक ऑफ क्लास 10, ठीक है।
या जैसे मैंने किसी न्यूज़पेपर में से कुछ पैरा लिया है, उसमें से टेबल बनाने को बोला है, तो आई शुड राइट हियर कि माय सोर्स इज द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर या हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन है, मतलब जहां से भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ली है उसका सोर्स अगर स्टेटमेंट में बताया गया है तो फिर वी शुड राइट हियर सोर्स। ठीक है, अगर नहीं दिया तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली इफ सोर्स इज गिवन तो देन वी शुड मेंशन। ठीक, सो ऑल दीज आर कॉल्ड, अभी मैंने साइड बाय साइड कवर कर दिया, कंपोनेंट्स। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स ऑफ टेबल। ठीक है, तो लेट अस रिकॉल क्या है कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज टेबल नंबर, मींस ईच टेबल शुड बी नंबर्ड फर्स्टली। उसका कोई ना कोई नंबर हमें डाल के काम करना चाहिए। जैसे आप बुक्स में देखते हो टेबल स्टार्ट होते हैं किसी लेसन में, तो एक टेबल के ऊपर लिखा होता है 1, उसके साथ फिर अगला टेबल आता है एक दो पेज छोड़ के, फिर लिखा होता है 1.1, फिर एक आधा पेज छोड़ के एक और टेबल आता है लिखा होता है 1.2। इसका मतलब क्या है कि एक ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात चल रही है, उसी से रिलेटेड टेबल बन रहे हैं, तो 1.1 1.2 ऐसे। फिर कोई नया टॉपिक आता है, फिर आता है टेबल नंबर 2, फिर 2.1 2.2 2.3। ठीक है ना, तो टेबल का नंबर शुड बी देयर। सेकेंडली हेडिंग शुड बी देयर, टाइटल शुड बी देयर, वेरी एसेंशियल। मतलब एनी नेमलेस टाइटललेस टेबल इज नॉट टू बी ड्रॉन। बिना टाइटल के टेबल नहीं बनाते हैं, उसके मार्क्स करते हैं। देन हेड नोट। हेड नोट में नॉर्मली यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टू बी शोन, कि जो वैल्यू है वो क्विंटल में है, मीटर में है, लीटर में है, थाउजेंड में है, रुपीज है, लैक्स है, करोड़ है, क्या है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ दिखाना होता है। देन this is the structure or body of the table. These horizontal lines, they are known as rows, and their heading is known as subhead या subheading. And these vertical dissections, divisions, they are called caption. Caption may have further sub columns known as, their headings are known as sub caption. और बीच में ये सारी जो numerical values होंगी, they will be known as cells or body of the table. And then footnote. Footnote is required when any item is to be described specially, specifically, then footnote is required. And lastly, source means from which source we have got all this information of the statement. Any newspaper can be there, any book can be there, any magazine, any survey, anything can be there. So these are called components or parts of the table. ठीक है जी, तो आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ ए स्केच ऑफ ए ब्लैंक टेबल, ड्रॉ स्केच ऑफ ए ब्लैंक टेबल। तो फिर आपने ये सारा ड्रॉ करना है, लिखना कुछ नहीं। ब्लैंक टेबल मतलब वैल्यूज हैव नॉट बीन गिवन, दे आर मिसिंग, सिर्फ हमने एक रफ सा उसका स्केच बना देना। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड कंपोनेंट्स आर क्लियर। नाउ इट्स गोइंग टू बी 11:29। आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी मैं आपको firstly I send the form for attendance and then I send the form for test. ठीक है, your test is based on previous chapter which we have covered. अब देखना नहीं, स्टार्ट करना, बुक्स बंद कर दीजिए अपनी। सो लेट मी स्टार्ट दिस। आई एम सेंडिंग इन योर क्लास ग्रुप। Yes, Patel, you can check attendance form I have sent. Start filling that by the time I send form for test. Yes, I have sent both the forms. Firstly, fill attendance form, your roll number and name, and submit. Please fill correct roll number. Hurry up, hurry up. After 11:40, no submission will be entertained.